اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیتا ہے خداوند؟ وہ زندگی دیتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم اس کو ریسیو کریں اور وہ زندگی حاصل کریں جو ہمیشہ کی زندگی ہے. ہلیلویا. ہم بڑھتے ہوئے کلام میں نکالیں گے عبرانیوں، پالوس رسول کا خط ہے. عبرانیوں 13 باب اور اس کی 7 آیات سے ہم پڑھیں گے. بیسک جو تھا وہ میں نے ایمان پہ تیار کیا تھا، لیکن روح کے حساب سے اب جو روح گائیڈ کرتے ہیں ہم وہی زندہ کلام سنیں گے. کیونکہ ہم جب بھی کلام کو سنیں لیکن کلام میں سے سنیں کہ صحیح تعلیم ہے یا کلام سے ہٹ کر ہے، تب ہم اس کو پورے دھیان اور گیان سے ریسیو کریں. ہلیلویا. ہلیلویا. اب پالوس رسول کا خط عبرانیوں 13 باب اور اس کی 7 آیات سے ہم پڑھیں گے جو ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے بہتر ہے. 13 باب اور اس کی 7 آیات سے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. تشریف رکھیں. آج کے خداوند کے زندہ کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہمارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں کیا کرو؟ یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ عبرانیوں کے خط میں ہم نے پالوس رسول کا خط ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں خداوند فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے پیشوا تھے. ہمارے پیشوا کون ہے؟ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ہمیں زندہ کلام ہم تک پہنچایا ہے. بہت سی قربانیوں کے وسیلہ سے، بہت سے دکھ و تکلیفوں سے یہ کلام ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو خداوند کے زندہ کلام میں جو اس کے شاگرد ہیں انہوں نے بہت سی مصیبتیں اٹھائی، بہت سے دکھ اٹھائے، اور تب ان میں کیا ہوا کہ یہ زندہ کلام پہنچا. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں تو اس کے جو شاگرد ہیں وہ میرا خیال ایک دو اپنی موت میرا خیال مرے ہوں گے، باقی سب شہید ہوئے ہیں. اس کے لیے، اس زندہ کلام کے لیے، اس خداوند کے منہ کے بولوں کے لیے. جب خداوند فرماتا ہے تو اس کو ریسیو کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کوئی بھی زندہ کلام کو سنیں اور ہو زندہ کلام کے مطابق ہی، تبھی ہم زندگی پائیں گے. اگر ہمارے جو پیشوا ہیں، جو ہمارے استاد تھے، جو تھے، لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے پیشوا تھے وہ ہمارے استاد ہیں جنہوں نے ہمیں زندہ کلام سکھایا، ہم تک پہنچ گیا. اور اب ہمارے پاس بھی وقت ہے کہ ہم اس زندہ کلام کو سنیں اور ان کی زندگی پر غور کریں جن کے وسیلہ سے یہ زندہ کلام آیا ہے، یہ زندہ کلام ہم تک پہنچا ہے. ان کی زندگی پر غور کریں کہ وہ کس طرح انہوں نے پہنچایا ہے. بہت سی مصیبتیں، بہت سے دکھ، کسی کو الٹا صلیب پر لٹکایا گیا، کسی کو نیزے مار کر شہید کیا گیا، کسی کو سنسار کیا گیا. بہت سے ایسے شاگرد ہیں، اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر ایک شاگرد کا ملتا ہے، لیکن ہم کس کا کلام ریسیو کرتے ہیں؟
जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का कलाम को रिसीव करते हैं जो हमें आज मिला है। हमें खुदावंद यीशु मसीह हमने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा, उस वक्त को भी नहीं देखा, लेकिन उसने मुबारक कहा है इसको, ये हमको मुबारक कहा है कि मुबारक है वो जो इस कलाम की बातों पर अमल करते हैं, जो इसको रिसीव करते हैं, जो इसको अपने दिल में रखते हैं और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि यही कलाम हमें जिंदगी दिलाएगा। अगर हम उनके अंजाम पर गौर करते हैं तो हम पर मुसीबत आती है तो हम क्या कर जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, अपनी मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों तकलीफों से निकालने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। इस दुनिया में अगर हम हैं तो हम जिस्म रखते हैं। खुदावंद भी जिस्म रखते थे जब वो बेटे की सूरत में आए, उन्होंने भी बहुत सी तकलीफें और दुख सहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि खुदावंद इनको क्या कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। उस वक्त खुदावंद के जिंदा कलाम को बहुत से ऐसे थे जो रिसीव करते थे, बहुत से ऐसे थे जो सिर्फ सुन के और दूसरे कान से निकाल देते थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जो उसके सिर्फ मौजे देखने के लिए आते थे, और उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ खाने पीने के लिए आते थे। लेकिन हम कौन से लोग हैं? हम मुबारक लोग हैं, क्योंकि हम तक ये जिंदा कलाम पहुंचा है। इसके लिए, उस जिंदगी के लिए जो खुदावंद हमें देना चाहता है। अगर हमें कोई मुसीबत आती है तो हम किस पर रखें? खुदावंद पर रखें, खुदावंद के आगे रखें। कल की बात है कि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, उसने 12 साल की उम्र में तौबा की और उस वक्त से अब तक खुदावंद में ही चलता रहा। तो खुदावंद ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, बहुत सी नेमतें उनको दी। अगर हम नेमतों को देखेंगे या उनके मौजों को देखेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन हम जिंदा कलाम की तरफ ही रहेंगे कि हम जो हमारे पेशवा थे उनकी जिंदगी पर हम गौर करें कि उन्होंने भी बहुत मुसीबतें झेल कर, कुर्बानियां देकर ये कलाम हम तक पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया है? कि मसीहियत जो है वो आखिर तक रहे, आगे तक रखे, क्योंकि खुदावंद ने हमें आखिर तक रहने के लिए पैदा किया था, बनाया था। हमें मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन हमने खुद उस मौत को हासिल किया जो खुदावंद ने नहीं चाहता था कि इनको मौत आए। उस मौत से निकालने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा, और उन्होंने अपने शागिर्दों को चुना। और शागिर्द कौन थे? गुनाहगार थे। वो आया ही गुनाहगारों के लिए था, उनको बचाने के लिए, उनको जिंदगी देने के लिए, निजात देने के लिए। तो खुदावंद ने उनको चुना तो अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया। आज भी हमारे पास जिंदा कलाम है, खुदावंद हमें चुन लेता है जो उसकी खिदमत करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो कलाम में जिंदगी गुजारते हैं। वो खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करता है। जिंदा कलाम में लिखा है कि अगर मुसीबत में हो तो क्या करो? दुआ करो। लेकिन आप भूल जाते हैं। और खुश हो तो क्या करो? हम्द के गीत गाओ। बहुत ऐसे लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो उसके नाम को इज्जत और जलाल नहीं देते, और जो उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, जिंदगी उनकी है। क्योंकि जिंदा कलाम में लिखा है जो गुनाह करता है वो किससे है? शरीर से है। शरीर जो होता है वो शरारत करने से नहीं जाता। जहां पर जिंदा कलाम होता है, जहां पर रूह और सच्चाई से उसकी इबादत होती है, उसकी परस्तिश होती है, वहां पर इब्लीस भी मौजूद होता है। अगर हम जिक्रिया की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यशवा काहन मिलता है। यशवा काहन को उसका फरिश्ता जो है वो मैसेज देता है, उसने 3 दिन के सफर पे जाना है। तो उसके दाहिने हाथ पर कौन खड़ा है? इब्लीस खड़ा है।
जहां पर कलाम होता है वहां पर अबलीस भी होता है, क्योंकि कलाम का उलट उसने किया हुआ है। वो कलाम को उलट करता है। क्यों करता है? कि ये जिंदगी ना पाए, लेकिन जो रूह और सच्चाई से कायम रहता है वही जिंदगी पाता है। बहुत से ऐसे हैं जो गिर गए हैं, जो खुदावंद की राह को छोड़ दिया है उन्होंने। लेकिन हमारा जो भाई है जो कल फोत हो गया, इस दुनिया में नहीं है, उसके मैंने शागिर्दों को देखा है, कलाम की तरफ आए, उसमें बढ़े, खुदावंद ने उनको नेमतें भी दी, बरकतें भी दी और उनके हाथ में शिफा भी दी, लेकिन वो गिर गए, वो आगे नहीं बढ़ सके। क्यों नहीं बढ़ सके? क्योंकि अबलीस ने उनको बढ़ने ही नहीं दिया। अबलीस कोई ना कोई कमजोरी देकर उनको क्या करता है? गिरा देता है। लेकिन जो कायम रहता है वो उसका खादम होता है, जो उसका वो आगे लोगों को भी कायम करता है। अगर हम जिंदा कलाम में देखते हैं तो लिखा है कि उनके अंजाम पर गौर करो, उनकी जिंदगी को देखो, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, और उन जैसे क्या हो जाओ? ईमानदार हो जाओ। ये कलाम अगर ना होता तो हम क्या थे? अंधेरे में थे, अब मौत में थे। लेकिन ये जब जिंदा कलाम आया है, उन शागिर्दों के वसीला से, उन रसूलों के वसीला से, उन नबियों के वसीला से ये जिंदा कलाम हम तक पहुंचा है। अगर हम इस पर गौर करते हैं तो हमें आखिर वाली जिंदगी मिलेगी, जरूर मिलेगी। और लिखा है कि यीशु मसीह कल भी और आज भी और आखिर तक भी क्या है? यकसा है। वही खुदावंद है जो शुरू में भी खुदा था और आखिर तक भी खुदा ही रहेगा। हालेलुया। हम इनकी जिंदगी पर गौर करें तो हमें भी खुदावंद, हमारा ईमान है कि हम वो जिंदगी हासिल करेंगे जो खुदावंद हमें देना चाहता है। लेकिन हम आगे एक हवाला निकालते हैं, दूसरा थिमोथियुस 4 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, अब वैसे ही बयान कर देते हैं कि वहां पर लिखा है कि अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद क्या करेंगे? बना लेंगे। आज ऐसा ही हो रहा है। आज वही वक्त है। अब जो खुदावंद के शागिर्द थे, हमारे उस्ताद थे, जिनके वसीला से कलाम पहुंचा है, तो आज हमने क्या किया है कि हम अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक क्या करते हैं? अपने उस्ताद बना लिए हैं। लेकिन तालीम उनके पास दुरुस्त नहीं है। आज हम देखते हैं तो जगह जगह पर चर्च बने हुए हैं। एक गली में तकरीबन 4-5 चर्च हैं, हमारी गली में 4-5 चर्च हैं। लेकिन जो उसके लोग हैं जो तालीम पाना चाहते हैं, जो उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, उनको तालीम दुरुस्त नहीं मिलती जिसके वसीला से हम वो जिंदगी हासिल करें। जिंदा कलाम हमारे सामने है कि हम कैसे जिंदगी हासिल कर सकते हैं। यही कलाम हमारे 2 पर हैं, नया यतनामा और पुराना यतनामा। अगर हम इसको रिसीव करते हैं तो हम क्या करेंगे? हवा में उड़कर क्या उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन हम उस तालीम की तरफ पहुंचे जो तालीम दुरुस्त है। लेकिन जिंदा कलाम में लिखा है कि सही तालीम को कोई भी नहीं सुनेगा। अपने कानों की खुजली के माफक क्या करेंगे? इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे। तो ये कौन निकालता है? अबलीस निकालता है। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो चर्च में कलाम तो सुनते हैं, बकायदगी से चर्च आते हैं, लेकिन सीढ़ी उतरते हैं तो उनके ज़हन से क्या निकलता है? कलाम निकल जाता है। तो क्या उस कलाम का फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमने पढ़ा है कि उनकी जिंदगी की तरफ
जो हमारे पेशवा थे उनकी जिंदगी की तरफ गौर करो। उन्होंने कितनी मुसीबतों के साथ हमारे दरमियान में ये जिंदा कलाम भेजा है जिससे हम जिंदगी पा सकते हैं। उन्होंने जिंदगी पाई है, बिल्कुल जिंदगी पाई है। दुख उठा के, मुसीबतें उठा के उन्होंने जिंदगी पाई है। इसीलिए आगे हम अगर पढ़ते हैं तो वो लिखा है कि बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो। जहां पर हमें रोज सच्चाई से जिंदा कलाम मिलता है हम उसको रिसीव करें, जरूर रिसीव करें, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि आसमान की मुकद्दस चीजों को ढूंढो तो ये जमीन की मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। अगर हमें ये इनाम में मिल जाएंगे तो हमें ढूंढने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। हम इन चीजों को ढूंढे जो पेशवाओं ने हम तक पहुंचाई है, हम उन चीजों को रिसीव करें। जिला कलाम में एक एक बोल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह का बोल है और शहद से ज्यादा मीठे बोल हैं ये, जो हमारी जिंदगी तक पहुंचे हैं और हमें वो जिंदगी देना चाहते हैं जो हमेशा की जिंदगी है। अगर हम 21 बाब में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो जो जिंदगी है उसमें, उस जिंदगी में कोई शरारत करने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ उसके लोग होंगे और खुदावंद यीशु मसीह साथ होगा। कौन से लोग होंगे? जो नया यरूशलेम उतरेगा उसमें वो लोग होंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने कलाम के वसीला से जिंदगी पाई है, और वो साथ होंगे जिनके अंदर आज कलाम होगा। जिनके अंदर कलाम होगा वो हवा में उड़कर क्या करेंगे? उसकी आमद करेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे, और बाकी जो है वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि साफ कलाम के जिंदा कलाम में लिखा है, 21 बाब में पढ़ते हैं तो वहां पर सिर्फ उसके ही लोग होंगे और खुद खुदावंद हमारे दरमियान ऐसे बैठेगा और वो हमारी आंखों के आंसू पहुंचेगा। ये हमारा सच्चा जिंदा खुदावंद है जिसने अपनी खुशियों को नहीं देखा, अपनी जिंदगी को नहीं देखा, आसमान का तख्त छोड़कर, जलाली तख्त छोड़कर कहां पर आया? जमीन पर। इसके लिए, हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, जो वो हमें देना चाहता था। लेकिन आज हमें क्या करना चाहिए? कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके शागिर्दों को देखते हैं तो उन्होंने भी वो जिंदगी हासिल करी कि जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, और हमें भी ये जिंदगी हासिल कर ली है। किसके वसीला से? जो जिंदा कलाम हम तक पहुंचा है, और इस जिंदा कलाम के वसीला से ही हम वो जिंदगी पाएंगे। अगर हम अपनी भाई की जिंदगी को देखते हैं तो 12 साल से लेकर जब तक वो अजियत में नहीं रहा उस वक्त तक उसने कलाम की ही मुनादी की है, कलाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। अगर आज हम भी जहां से कलाम रिसीव करते हैं तो क्या करें? उसको रिसीव कर लें, ताकि यही कलाम हमें जिंदगी दिलाएगा। हम एक और हवाला जल्दी से निकालेंगे, पहला थेसलोनिकियों, और हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। पहला थेसलोनिकियों 5 बाब और उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। ये भी पौलुस रसूल का खत है जो हमारी लज़ियत और हमारी तरबियत के लिए है। पूरा जिंदा कलाम है हमारी तरबियत के लिए है, ताकि हम जिंदगी हासिल करें। पहला थेसलोनिकियों 5 बाब और उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उनकी मानो।
आज कौन है हमारे पेशवा? जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे पास्टर हैं, ये आज हमारे उस्ताद हैं। और जो हमारे पेशवा थे जिनके वसीला से ये जिंदा कलाम आया, और इस जिंदा कलाम को किन्होंने रिसीव किया? जो हमारे पेशवा हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, ये उन्होंने रिसीव किया, तो हम जिंदगी पा सकते हैं। क्योंकि जो उसका खादम, पास्टर या कोई भी एल्डर लगा लें या आप फादर लगा लें, अगर जो जिंदा कलाम को सही प्रीच करता है, जो कलाम के मुताबिक दुरुस्त तालीम देता है, वो कौन है? उस्ताद है। अभी हमने पढ़ा है कि सबने अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक क्या किया है? उस्ताद बना लिए हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मिलता है कि हम वो उस्ताद बनाए जो हमें दुरुस्त तालीम दे, जिसको खुदावंद इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, ताकि वो और बहुत सी रूहों को बचा सके, बहुत सी रूहों को जिंदगी दिला सके। और जिंदगी हमें कौन दिलाता है? जिंदा कलाम। क्योंकि इसमें जिंदा कलाम में ही हमें जिंदगी मिलती है। उस वक्त को हमने नहीं देखा, लेकिन अब ये आज वक्त देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है? जिंदा कलाम है। हमारे पास दो पर हैं जो हमें हवा में उड़ने की कुव्वत ताकत देंगे। हालेलुया। और हम कहाँ से सीखते हैं? अपने उस्तादों से। वो कहता है कि उनकी तालीम को सुनो और उनको मानो, क्योंकि वो अपने पास से नहीं कहते, वो जिंदा कलाम में से हमें समझाते हैं, ताकि हम जिंदा कलाम को रिसीव करें और वो जिंदगी हासिल करें जो खुदावंद हमें देना चाहता है। और जो इस कलाम से हट जाता है वो तारीकी में चला जाता है, वो मौत में चला जाता है। उसके लिए वो जिंदगी नहीं है जो खुदावंद देना चाहता है। अगर हम देखते हैं तो हमें एक तंग दरवाजा मिलता है और एक कुशादा दरवाजा मिलता है। और हम कौन सा दरवाजा इख्तियार कर रहे हैं? कौन से दरवाजे को रिसीव कर रहे हैं? जो कुशादा दरवाजा है। आज मैंने जगह जगह पर देखा है कि जिंदा कलाम पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशें कौन सी रखते हैं? कुशादा दरवाजे वाली। और जो तंग दरवाजे में गुजरते हैं उनके लिए मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें, ये किसके लिए है? उसकी जिंदगी के लिए, उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। क्योंकि साफ जिंदा कलाम में लिखा है, अगर हम तंग दरवाजे से गुजरेंगे तभी हम जिंदगी हासिल करेंगे, और अगर कुशादा दरवाजे से गुजरेंगे तो हम जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। यही जिंदा कलाम हमें हमारे उस्ताद सुनाते हैं, हमारे जो पेशवा हैं वो सुनाते हैं। तो तभी हम जिंदगी पाते हैं जब दुरुस्त कलाम को हम रिसीव करते हैं। तो दुरुस्त कलाम कौन है? जिंदा कलाम। लेकिन बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं जहां पर हमने वो मूवी देखी होगी जहां पर खुदा यीशु मसीह उनको मार के गिराता है कि तुमने क्या किया है, मेरी हैकल को तिजारत खाना बना दिया है और डाकुओं की खूह बना दी है। वो आज के वक्त में अगर हम देखते हैं तो जो इस कलाम की दुरुस्त तालीम नहीं देते, जो कहते हैं कि हमारे पास हदिया ज्यादा हो, हमारे पास चंदा हो, हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हो, जो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमारे पास चाहे थोड़े लोग हैं लेकिन हमारे लोगों में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे हमें क्या है? सिर्फ जिंदा कलाम है, हम उस जिंदा तालीम को समझते हैं। क्योंकि हमें कौन सी तालीम मिलती है? जो दुरुस्त तालीम है, हमें वो दुरुस्त तालीम मिलती है। हमें किसी बात का कोई लालच नहीं है। अगर हमें लालच होगा तो फिर हम जिंदगी नहीं पा सकते। जिंदा कलाम में लिखा है कि ऐ बच्चों लालच से बचो, ये हमें कहा गया है। लेकिन हम जैसा करेंगे वैसे ही जिंदगी हासिल करेंगे। हमारे पास जिंदा कलाम है। अगर हम देखते हैं तो हमें क्या सबक मिला है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो हमारे उस्ताद हैं, जिन्होंने हमें सही तालीम दी जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दी।
वो तालीम हम तक पहुंची है। और आज हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे पेशवा हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं, सही तालीम, दुरुस्त तालीम देते हैं। तो हम उसको क्या करें, रिसीव करें। अगर हम रिसीव करेंगे तो हमें वो जिंदगी मिलेगी जो दुरुस्त है, जो खुदावंद के साथ है। अगर हम नहीं करते तो हम वो जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। हर किसी का एक उस्ताद होना जरूर है, लेकिन उस्ताद वो जो रोज से तालीम देता है, हालेलुया, तभी ही हमें वो जिंदगी मिलेगी जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहता है। आज हमारे पास वक्त है, जो इस दुनिया से कूच करके उनके लिए कोई वक्त नहीं। आज जिंदा जो है उनके लिए वक्त है। जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, वहां पर जिंदा कलाम पढ़ा जाता है, वो उसके लिए नहीं होता, वो तो मिट्टी है। तो खुदावंद ने कहा है कि तू मिट्टी से लिया गया और मिट्टी में ही लौट जाएगा। तो उसके लिए वो जिंदा जो सुन रहे हैं उधर वहां पर कलाम, वो कलाम उनके लिए है कि कल को आपने भी यहाँ पर आना है। इधर से तो हम चले जाएंगे, लेकिन वो जिंदगी जो खुदावंद के पास है, हम पूरी कोशिश करें कि उस जिंदगी को हासिल करें जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। जिसकी हम इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, वही हमें कुव्वत ताकत देता है कि हम उसकी वो जिंदगी हासिल करें जो खुदावंद देना चाहता है। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आपको बरकत दे।